wait for people. We are on live right now, Iraji, and we have viewers now joining us. And thank you so much, viewers. Thank you so much for being live with us today. And I have with me a very, very special guest today. अगर इंस्पिरेशंस और जितनी भी एडजेक्टिव्स डिक्शनरी में आप ढूंढ सकते हैं उन सबका एक सम करना हो तो वी हैव दिस पर्सन विद अस ईरा सिंघल. This woman, she doesn't come small. She comes so tall with her dignity, with her upbringing, with her attitude, with her wisdom, with her knowledge, and with her skill set. And I'm going to give a short introduction about her, and you will go, wow. The first time I met her, I actually fell in love with her simplicity, her authenticity, her geniusness, and the way she speaks. She is someone who really is a change maker. So Ira Singhal is our extraordinary guest today. She's a change maker. She is a trendsetter. She has fire to conquer the world. She's inspiration to many, and she commands respect. She stands so tall in her values and virtues. And why? Why? You know why I'm saying so many of adjective about her? The entire nation is so proud of her because she actually broke the stereotyping. And you could always Google about Ira Singhal, and you will find so much of wisdom, so much of knowledge, so much of the thoughts she brings. And definitely, she is inspiration for our youth. इनके बारे में जो सबसे खास बात जो मुझे बतानी है आप सबको, उसके बाद हम ईरा की स्टोरी जानेंगे. लेकिन ईरा की जो सबसे स्पेशल बात है, शी हैज अ 62% लोकोमोटिव डिसेबिलिटी. लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में आप अपनी आर्म को बेसिकली मूव नहीं कर पाते हैं ऑर्डिनरी लोगों की तरह, पर शी स्टिल स्टैंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. आईपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में, आईपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम के अंदर दिस वुमेन बैग 4 out of 5 top positions. 4 out of 5 top positions. And this was not her first attempt. So she had appeared in the civil exam in 2010, 11, 13, and 14. In spite of the fact that she cleared exam in 2010, her file was rejected for some reasons. For that, she filed a lawsuit and won, and opened gates for millions of people now in our country. Now, can you imagine? This woman deserves respect, command love, and command all our admiration. And that's the reason I said dictionary will fall short of adjective and we have to put Ira in one word. So Ira, thank you so much for having with us on this show. I feel so blessed, so honored. Thank you. And yeah, so I know I'm not able to do justice to your introduction because you are not someone who can be put in some paraphrasing of the words. The kind of work, the kind of virtues, the kind of values you bring to our nation. आप इस जॉब में एनडीएमसी के अंदर जो आप कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं वाकई में काबिले तारीफ है. आपने हमारी कंट्री के लोगों के लिए जो भी कुछ किया काबिले तारीफ है. हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपका. And we really salute your spirit. Thank you. But I think that's the quality of our job. All IS officers end up making a difference because, ये opportunity ही ऐसी होती है कि हर कोई कर पाता है. So I think I've not done anything special. सबने किया है. Just that किसी का आपको पता है और किसी का आपको नहीं पता है. That's the humbleness she brings with her, and that's how the simplicity she brings with her. But as I mentioned, आप इनके बारे में जब भी एक सर्च इंजन पे इनका नाम डालेंगे, you will know the kind of contribution this girl is bringing for our nation. And she is surely going to be remembered by the youth of our future. This is what this woman has in her. And you will all bow in terms of your respect, admiration, and love for her. So you will bow in front of her. I am sure to tell you this after I end the conversation. I think you praised me way too much. Thank you. No, you deserve everything. You deserve every bit of this appreciation. Thank you, Ira. So, Ira, we have seen your actions as you are doing. आप बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं. स्कूल ऑफ इंक्लूसिवनेस की अगर हम बात करें, या हम बात करें आपके खुद की अचीवमेंट्स की, या हम बात करें आपके एनडीएमसी में कोरोना टाइम में आपने दिल्ली में जो बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं, इतने सारे इतने बड़े लेवल पे जो आपने इनिशिएटिव्स लिए. So I have this question for you, and we have a lot of viewers. I have a lot of people who are youth, और हमारे यूथ को ये चीज समझने की जरूरत है आपकी स्टोरी से.
because it's inspiration. In the entire word of your story is inspiration. So I would like to ask, we would move with the questionnaire, and I would like to ask the questions to you. Yes, So by please. your actions at your work and for society as whole, and your inspiring story has actually influenced lives of many people. जब आप जॉब पे जाते हैं, your every decision moves people. Your every single decision moves people, and you are consciously taking decisions जो लोगों को elevate कर रहा है या उनकी जिंदगी में सुधार लेकर आ रहा है. Please share your story of journey of becoming the most loved, most dutiful, and I'm such sure. an I'm sure inspirational that's not IAS true. officer. No, I'm sure that's not true. But in short, I lived my early years in a place called Meerut. It's in UP. एंड दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आपकी लाइफ में बहुत कम होता है, बट यूपी में काफी पता चलता है. यूपी में एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ योर एंटायर ethos a lot more. So I remember, I think I decided to want to be into civil services as a child. हमेशा से मुझे ऐसा था कि मुझे कोई ऐसा काम करना है where I'm doing something for the people, where I'm working for the people. So I wanted to be either a doctor or a civil servant. सिविल सर्वेंट का आइडिया ऐसे आया कि जब आप हम लोग सिविक्स की किताब में ये पढ़ रहे थे कि डीएम क्या होता है, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के बारे में पढ़ रहे थे. उसी टाइम पे जैसे आजकल स्कूल्स बंद हैं और कोरोना की वजह से हमारे यहाँ स्कूल्स बंद थे 6-7 महीने बिकॉज ऑफ रायट्स. एंड उस टाइम पे आपको पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या करते हैं. जैसे आज की डेट में दिल्ली के बच्चों को शायद पता है कि एसडीएम कौन होता है और डीएम कौन होता है, बिकॉज आपने कोरोना के टाइम पे सारा वर्क उनके थ्रू देखा है. So that was similar case when I was a child, and that's when I thought कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग का सा काम है, इसमें इतना कुछ आपको करने को मिलता है, इतना कुछ आपको सुधारने को मिलता है, इतना कुछ आपको प्रिवेंट करने को मिलता है, and you get to work with people. But then I moved to Delhi. तब दिल्ली में आके when you grow up वो चेंज रहता है सब कुछ, एंड यू गेट इनटू द होल, आपके आसपास जो हो रहा होता है ऐसे वो होते हैं. तो आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर. पापा को लगा बेटा तुम खुद पेशेंट जैसे दिखते हो, तुमसे कौन इलाज कराएगा. सो मेडिसिन में नहीं उन्होंने मुझे जाने दिया. 12th में आई डिडंट इवन हैव बायो. देन आई वेंट इनटू इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग के दौरान समझ आ गया कि ये तो बस की नहीं है. आई एम प्रीटी मच वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंजीनियर्स. देन फिर ये हुआ, इंजीनियरिंग में 4 साल मैनेजमेंट किया एक तरह से. आई पार्टिसिपेटेड इन एवरी कॉलेज फेस्ट. आई मैनेज्ड सब चीजों के मैनेजमेंट टीम्स में आई यूज्ड टू बी देयर. बहुत सारे क्लब्स स्टार्ट करे, बहुत सारे पुराने क्लब्स में लीडरशिप रोल्स लिए. तो आई थॉट कि अब 4 साल मैनेजमेंट कर लिया है तो डिग्री भी ले लेते हैं. तो वेंट इनटू बिजनेस स्कूल, 2 years MBA. Then I joined one of the nicest companies in the world, Cadbury India. And it was absolutely an amazing company. And I mean, imagine a job जहाँ पे आपको free chocolates for life हो. तो उससे अच्छा क्या हो सकता है, right? So and company is really sweet. I used to live on Pedder Road in Bombay. I don't know if most people would know about it. That's where the Antilla Shri Mukesh Ambani's house is. तो उसके ठीक सामने हमारा कंपनी का गेस्ट हाउस था. तो I used to stay there. ऑफिस भी 1-1.5 किलोमीटर था वहां से. तो लाइफ वाज प्रीटी नाइस. बट एक्चुअली देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई वाज वर्किंग 20-hour days. मैं 20-20 घंटे काम कर रही थी एक दिन में. एंड फिर आई स्टार्टेड थिंकिंग कि इज दिस द काइंड ऑफ लाइफ दैट आई वांट. क्योंकि मैंने 20 घंटे काम किया पर मेरे काम से किसी की लाइफ पे कोई पॉजिटिव असर नहीं हुआ. The only thing I did was sell a little more chocolates and earn a little more money for a lot of people. But it really didn't make a difference to someone's life. तो मैंने 20 घंटा काम किया, बट कोई उसके बाद ये नहीं बोलेगा कि अरे आपकी वजह से हमारी लाइफ बेटर हुई. And I saw no purpose in that, and I needed my life to have made a difference. I needed कि मेरे काम की वजह से किसी की लाइफ बेटर हो, कोई ये कहे कि आपने ये किया और I got मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ. So that's when I decided to quit my job and get into civil services. And civil services में like you were mentioning, मैंने 2010, 11, 13 and 14 का attempt दिए. The reason is कि I got in 2010 and तब पता चला कि मेरी जो disability है, basically disabilities बहुत टाइप की होती हैं. As per the new RPWD Act also हमारी 21 टाइप की disability recognized हैं.
तो आई फॉल इनटू दिस कैटेगरी ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज कॉल्ड ऑर्थोपेडिक. सो उसके अलावा होती हैं विजुअल, हियरिंग एंड मेंटल. तो मेरी ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी है, उसमें आई हैव समथिंग कॉल्ड स्कोलियोसिस. स्कोलियोसिस बेसिकली आपकी स्पाइन इज इन अ स्पाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, उसकी जगह इट्स एन एस शेप्ड कर्व. तो दैट अफेक्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर बॉडी एंड वो बहुत डिफरेंट वो होता है. तो मेरी जो डिसेबिलिटी थी वो किसी भी जॉब के लिए रिकॉग्नाइज नहीं थी एक्सेप्ट फॉर द आईएएस. एंड इनफैक्ट दैट्स द प्रॉब्लम कि पूरे देश में माय डिसेबिलिटी इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड टू इन द आईएएस एंड इन नो अदर जॉब इन द कंट्री. So basically, I cannot become any other, I cannot get a post anywhere else. I can only become an IAS officer. And इसलिए I got rejected from UPSC despite getting selected in 2010. And 2010 का result 11 में आता है. तो I had to run around, find out क्या हुआ. उसके बाद I realized कि I've been rejected because मेरी disability, even though मैं काम कर सकती हूँ, ये declared है, बट बिकॉज मेरी डिसेबिलिटी लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटीज में नहीं आती है, तो दे हैव रिजेक्टेड मी. सो आई रियलाइज कि मैं तो सिस्टम में सिर्फ इसलिए आई थी कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकूं. सो दिस वाज माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. आई डिसाइडेड कि लेट मी फाइट अ कोर्ट केस, बिकॉज ये जस्टिफाइड नहीं है कि आप किसी को इसलिए रिजेक्ट कर दें कि वो काम कर सकता है बट आप उसकी डिसेबिलिटी को लिस्ट में डालना भूल गए. तो आई वेंट टू कोर्ट एंड आई डिड गिव माई एग्जाम. दो ऑनेस्टली मैं अपना वो छोड़ के सर्विस जॉब छोड़ के इसलिए आई थी कि मुझे आईएएस में ही आना था, आईएएस या आईएफएस में. एंड ये मुझे अभी नहीं मिले थे, मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं था. तो इम्प्रूव आई गेव 2011 का एग्जाम, फिर 13 का, एंड देन 14 के एग्जाम के टाइम पे इज व्हेन आई फाइनली गॉट माई कोर्ट का जजमेंट एंड कोर्ट गिव मी द जॉब एंड कोर्ट सेड कि ठीक है, गो ज्वाइन. तो जब तक मेरी ज्वाइनिंग आई तब तक मैंने एग्जाम एक बार और दे दिया. एंड दिस टाइम वो पहले वाला जो था कोर्ट केस और वो ज्वाइनिंग थी, दैट वाज द इंडियन रेवेन्यू सर्विस. बट दिस टाइम इन माय फाइनल अटेम्प्ट आई गॉट इनटू द आईएएस. सो नाउ आई एम पोस्टेड इन द आईएएस. Wow, this is so incredible, Ira. Matlab, I cannot even think about it that you have actually found this case to bring out a lot of opportunity for people who are differently abled, right? और अब ये ईरा की वजह से आप सब लोग बहुत प्राउड फील होंगे, आप हिस्ट्री में इनका नाम लिखा जाएगा, बिकॉज ईरा की वजह से ये एक लिस्टिंग अब आईएएस की लिस्टिंग में आ चुकी है. दोस हु आर एस्पायरिंग, आईएएस में पहले से थी, बाकी सर्विसेज में नहीं थी. बट या बट अब बाकी सर्विस नहीं, अभी भी नहीं आई है. इनफैक्ट उन्होंने मुझे जॉब दिया, बट आई एम गेटिंग इट चेंज्ड. आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि सारी सर्विसेज में अगर आप काम कर सकते हो तो आप एक्सेप्ट हो. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट. होपफुली विल चेंज इट इन अ फ्यू इयर्स. Wow, Ira, thank you so much. Thank you so much for fighting for justice for everyone. हम अक्सर अपनी सोच में बहुत नैरो हो जाते हैं, इंडिविजुअल तक ही सीमित रहते हैं, अपने तक ही हमेशा सीमित रहते हैं. बट आपने देखा जब मैंने इनका इंट्रोडक्शन दिया उसमें क्यों मैंने मेंशन किया कि शायद एडजेक्टिव्स की लिस्ट खत्म हो जाए इन्हें डिफाइन करते करते डिक्शनरी में, बिकॉज शी एक्चुअली फाइट्स फॉर एवरीवन. So she's fighting for humanity. तो जो उनका पैशन है वो उनके काम के हर जज्बे में नजर आता है. And that's what Ira is for us. Thank you so much, Ira, for being so wonderful. Thank you for inspiring us. Ira, I have one more question to you, because I created a list of some questions which belong to everyone, right? So हम लोगों ने हमेशा observe किया stereotyping exists everywhere in our life, everywhere almost. So we have always seen they are passed down from generation to generation. And instead of embracing and celebrating the stereotype, what we do, we try to stand apart because of the stereotyping. So there are categorization, and there are badges of the people, there are labeling of the people, right? तो आप मुझे बताएं, and you are breaking one of the biggest stereotype by calling it the school of inclusiveness, जिसमें सभी स्कूल के सभी बच्चों को equal opportunity मिले. So do you think that by doing this school of inclusiveness, is it going to change the mindset for all? That is the idea. हमारी hope वही है कि every child should get to be in school. Basically क्या होता है कि हमारे बहुत सारे prejudices हैं जो हम as teachers हमारे उनको classroom तक ले आते हैं.
एंड हम जो बच्चों के बारे जो सी प्रॉब्लम क्या है, हम जिसे समझते नहीं है उसको नेगेटिव मानने लगते हैं। एंड दी होल आइडिया इज कि लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स आर। तो अभी हमने दो चीजों पे काम किया है। फर्स्ट इज ऑन डिसेबिलिटी। तो आई वांट एवरी चाइल्ड टू स्टडी इन द सेम एनवायरनमेंट। सी अगर आप एक इंसान को अलग रखते रहेंगे, एक आपका एक तरीके के बच्चे एक डिसेबिलिटी की वजह से आप उन्हें स्पेशल स्कूल भेजते रहेंगे, उन्हें स्पेशल क्लासेस भेजते रहेंगे, तो वो बच्चा हमेशा अलग रहेगा, यू नो। एंड चाइल्डहुड में अगर हम सब साथ में रहेंगे तो हम बड़े होके भी साथ हो पाएंगे। सो द आइडिया वाज कि लेट द टीचर अंडरस्टैंड कि किस बच्चे की क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट है। और बहुत बच्चा ऐसा है जो रेगुलर क्लास में आराम से आ सकता है, बट आज की डेट में टीचर उसकी डिसेबिलिटी देखती है और कहती है कि अरे ये तो स्पेशल क्लास जाएगा, और आप उसे अलग कर देते हो। While I know that you need special schools and you need special classes, but वो सबके लिए नहीं होनी है। वो एक बहुत छोटे, वो इसलिए होती है कि वो बच्चे के लिए बेटर है, ना कि वो टीचर के लिए बेटर है। So the idea is that classroom has to be for the child and not for the teacher's convenience. And that's what we are doing कि हम टीचर्स को सिखा रहे हैं कि तुम्हारी क्लास में अगर ये इस टाइप का बच्चा है तो वो बच्चे को तुम इजीली क्लास में रख सकते हो, उसको आराम से पढ़ा सकते हो। And I currently work for MCD schools, North MCD schools, and MCD का जो स्कूल होता है ना, वो सबसे गरीब बच्चे के लिए होता है। यू नो, इन अ प्लेस लाइक दिल्ली, सबसे गरीब वो बच्चा जिसको कोई नहीं ले रहा है, वो मेरे एमसीडी के स्कूल में आता है। तो अगर वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? सो द आइडिया इज कि हम उस बच्चे को जिसको ऑलरेडी बाकी सब नहीं अपने स्कूल में ले रहे हैं, या बाकी अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी उसके पास कम से कम ये अपॉर्चुनिटी भी ना चली जाए। एंड उसके अलावा हमने एक और चीज करी है, आई हैव आल्सो ट्रेन्ड ऑल माय टीचर्स ऑन ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन। सो आई टेल यू द रीजन फॉर दैट। एक्चुअली ट्रांसजेंडर्स एक ऐसा ग्रुप है जो हमारी सोसाइटी से बिल्कुल अलग है, और हम लोग उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, बिकॉज हमारी रेगुलर लाइफ में उनसे हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं होता। एंड दैट वाज ट्रू फॉर मी ऑल्सो। बट क्या हुआ आफ्टर माई सिलेक्शन, एक दो साल बाद, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, मुझे एक ट्रांसजेंडर्स के एनजीओ ने बुलाया, एंड आई वेंट देयर। एंड नॉर्मली मेरे को आप कभी कोई सवाल पूछेंगे ना, आई विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट इट। आई विल ऑलवेज बी एबल टू टेल यू कि आप इसमें अपने लाइफ में अपने आप ये चेंज कर सकते हो। यू नो, आपके साथ लोग ऐसा बुरा कर रहे हैं तो आप ये सोचो, I can always tell you what you are doing wrong and where you can improve yourself and hence make the situation better. But that was the only time in my life I did not have a positive answer. I could not tell them कि आप ये गलत कर रहे हो और इसलिए आप ये चेंज कर लो और तब आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। आप ये सोच, देयर सिचुएशन इज कि उनके माँ बाप उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं बचपन में ही। उन्हें स्कूल में टीचर्स मजाक उड़ाते हैं, बच्चे नहीं, टीचर्स मजाक उड़ाते हैं। तो वो बच्चा स्कूल छोड़ देता है, वो बच्चा पढ़ाई भी नहीं कर पाता, कोई जॉब नहीं देता, कोई किसी को उन्हें घर किराए पे नहीं देता। बिकॉज अगर आप किसी ट्रांसजेंडर को घर किराए पे देंगे तो पड़ोसी क्या बोलेंगे कि अरे आपने घर किसको दे दिया, राइट? तो आप एक बात बताइए, हमने एक सोसाइटी के सेगमेंट को ना पढ़ाई कराई, ना जॉब्स दिए, घर वालों ने भी फेंक दिया, ना घर दिया, वो इंसान कैसे जिए? एंड सो देयर इज वन थिंग दैट आई कैन चेंज राइट नाउ। आई कैन चेंज एटलीस्ट उसके स्कूल में उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। वो बच्चा अगर एजुकेशन ले पाएगा तो ही कुछ और कर पाएगा। सो आई ट्रेन्ड ऑल माई टीचर्स कि अगर ऐसा कोई बच्चा क्लासरूम में है तो आप उससे क्या कैसे बिहेव करें एंड उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे नहीं करें। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ट्रांसजेंडर को समझते नहीं है। वी डोंट अंडरस्टैंड कि ट्रांसजेंडर्स होते क्या हैं, और इस वजह से हम उन्हें नेगेटिव लेते रहते हैं। तो द आइडिया इज टू ट्रेन देम कि ये नेगेटिव वाली चीज नहीं है, ये they're just a part of our society that like the rest of us, and they deserve all those other opportunities जो हम बाकी सबको दे रहे हैं। So that was the idea and that's the second step that we are doing. उसके अलावा we have a lot of other things planned as well. The idea is कि classroom is a place where every child should get the same opportunity and every child should feel safe. So that's what we are trying to do. Thank you so much, Ira. That's such a wonderful thought process you bring. और शायद ये बात ही आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट करती है और जिसकी वजह से आप हमेशा सराहनीय रही है सबके लिए।
So every event I have seen you, anywhere you have been on stage, you actually talk with a lot of integrity, authenticity, and you are a change maker, as I mentioned. और इस तरह की सोच रखना बहुत 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 काबिले तारीफ है. We are so thankful that we have someone like you to change the era of our generation. Thank you, Veera. So it was very wonderfully answered, and I hope बहुत सारे लोग जो इस चीज को सुन पा रहे हैं उन्हें कोई नई hopes मिली होगी that we are bringing with a lot of changes now in our education system. That's called School of Inclusiveness, and that initiative is being run in Delhi by our Ira Sehgal. Ira, एक चीज बताएं, आप खुद भी मैंने आपके एक इंटरव्यू में पढ़ा कि आप सुपर इंटेलिजेंट थी, आप टॉपर थी स्कूल की, उसके बावजूद आपको एक स्कूल में एडमिशन के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, वो भी एक दिल्ली का नामी स्कूल था. So is it also like this that do any differently able children get a special kind of discrimination in our society while growing up? Yes. And how do you deal with it? And how do you deal with it? Because it's very important. बहुत बार हम काफी अपने अपने आप में ही काफी शर्म महसूस करने लग जाते हैं इस बात को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर. तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे ऐसे लोगों को कि वो कैसे इस सब चीजों से डील करें? हाउ डू दे लाइक कम अप, और वो किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, ताकि हम लोग यूथ ये समझ पाए कि हमें क्या बदलाव करने अपनी सोच में, अपने नजरिए में, ताकि हम उन सबको वही हक दे पाए. So there are two ways. पहली चीज for people with disability, जिनको खुद में कोई कमी है या कोई आपकी चीज है. देखिए, अगर आप अपनी कमी पे फोकस करते रहेंगे तो दुनिया उसी पे फोकस करेगी, क्योंकि आप सारा दिन उसी की बात करते हैं, आप सारा दिन उसी एंगल, उसी डायरेक्शन से अपने कम्युनिकेशन करते हैं. आपकी जो सोच है ना, वो आपके कम्युनिकेशन में आती है. अगर आपकी अपने बारे में सोच नेगेटिव है तो आपकी कम्युनिकेशन में वो नेगेटिव ही आएगी, एंड सामने वाला ऑटोमेटिकली आपकी ओपिनियन आपके ही वर्ड से पिक करता है. तो आप अगर अपने बारे में कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो सामने वाला बिलीव करेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं और आप केपेबल हैं. तो अगर आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं या आप डिसेबल्ड हैं या आप में कोई कमी है, तो सामने वाला भी वही देखता रहेगा और वही फील करेगा. और तो यू शो द वर्ल्ड व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड रिएक्ट्स सिमिलरली. हेंस आई वुड से कि अगर आप अपनी खूबियां देखोगे तो दुनिया खूबियां देखेगी, अगर आप अपनी कमियां देखोगे तो दुनिया कमियां देखेगी. कोई लड़की अगर मैं आज छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. कोई लड़की बहुत काली है और वो यही सोचती रहे मैं काली हूँ और शर्माती रहे, तो लोग यही बोलेंगे वो काली सी लड़की. पर अगर वो लड़की एक बहुत अच्छी डांसर है और सारा दिन स्टेज पे जाके अच्छे से डांस करके दिखाती है, तो लोग पहली चीज ये बोलेंगे, अरे वो लड़की जो बहुत अच्छी डांसर है. तो आप सोच लीजिए आपको अपने बारे में लोगों से क्या कहलवाना है. तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप में ये कमी है और उसके बारे में ही आप अपने आप को पीछे रखते हैं और अपनी नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे, तो दुनिया वही देखेगी. एंड फॉर एवरीबडी एल्स, शायद कोई और किसी के बारे में सोचने में ना बहुत इतना टाइम नहीं है किसी के पास. यूथ में स्पेशली आप इतना ज्यादा अपने बारे में सोचने में बिजी होते हो कि आप कभी किसी और को इक्वल बना नहीं पाते, और आप इतने इनसिक्योर होते हो यूथ में, क्योंकि आप अपनी ही आइडेंटिटी ढूंढ रहे हो, तो किसी और की आइडेंटिटी को आप इक्वल दे नहीं पाते हो. तो मैं उनसे सिर्फ यही कहूंगी, एक सेकेंड किसी के बारे में अगर कुछ सोच रहे हो तो पहला चीज ये पूछो अपने आप से कि मैंने ये क्यों सोचा. जनरली 2 या 3 कारण होते हैं. या तो उस इंसान ने तुम्हारे साथ एक्चुअली में कुछ बुरा किया है, या तुम उस इंसान से इंफीरियर फील कर रहे हो, जेलस फील कर रहे हो या इंफीरियर फील कर रहे हो, तब तुम उसके बारे में नेगेटिव सोचते हो. या मतलब यही 2-3 रीजन होते हैं कि उनकी वजह से तुम या तो अपने बारे में बुरा फील कर रहे हो या उसने एक्चुअली में तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है. तो जस्ट थिंक फॉर अ मिनट. ये दोनों चीजों से आप अगर ये आपकी प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप कभी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचोगे. एंड जब सोच रहे हो तो एक सेकेंड ये जरूर फाइंड आउट कर लेना चाहिए अपने आप से ना, ये वाई का क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, एंड उसका लास्ट तक रीजन तक जाना चाहिए. अच्छा, ये फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी चीज बोलती हूँ. मुझे किसी ने बोला कि ट्रांसजेंडर लोग खराब होते हैं, तो लेट्स आस्क क्यों. क्योंकि मुझे किसी ने बताया, और उसने क्यों बताया, उसको क्या प्रॉब्लम थी जो उसने ऐसा मुझे बोला. आप ऐसे सोच सोच के अगर लास्ट तक जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा जो आप सोच रहे हैं वो बहुत गलत है, और ये सारी आपकी सोच की डिफिकल्टी है, सामने वाले की नहीं है. 99% केसेस में हम अपने इंफीरियोरिटी या अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं. सो इफ वी कैन टैकल दैट, अगर हम वहां पहुंच पाए
एंड साथ में रिमेम्बर दिस, आप सारी दुनिया से सारा टाइम नहीं compete कर रहे हैं, तो कोई अगर किसी चीज में अच्छा है तो उसको उसके बारे में एक्नॉलेज करके कुछ बुरा नहीं हो जाता। प्लस ये भी याद रखिए कि आप भी किसी चीज में अच्छे हैं, तो अगर आप अपने अच्छा और दूसरे का भी अच्छा देखोगे तो दुनिया अच्छी है। पर अगर आप अपने लिए भी नेगेटिव सोच रहे हो तो आप सारा दिन दूसरों को दुश्मन ही मानोगे। सो दैट वर्क्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज ऑल्सो। मैं बहुत बार ये सुनती हूँ कि पीपल विद डिसेबिलिटीज से कि दुनिया मेरे लिए बहुत खराब है। वो दुनिया सबके लिए सेम है, आप देख क्या रहे हो वो प्रॉब्लम है। सो अगर दुनिया आपको खराब दिख रही है तो शायद आप भी खराब बिहेव कर रहे हो। शायद आप ये मान रहे हो कि सब लोग आपको पसंद नहीं करते हैं और आप वो रिएक्शन अपना ऐसे देते हो। पर मैं आपको मतलब अगर आपको ये लगता है ना कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, तो जब आप मुझे देखोगे मैं आपको फ्राउन करूंगी, है ना, मैं आपको ऐसे देखूंगी। बट अगर आप मेरे को लगता है आप मेरे को पसंद कर रहे हो तो मैं आपको स्माइल दूंगी। तो अगर आप ये मान रहे हो सामने वाला आपको देख अच्छा नहीं लगता या आपको पसंद नहीं करता, तो आप भी तो वैसे ही रिएक्ट कर रहे हो ना। आप अगर 1 मिनट के लिए किसी आई एम टेलिंग यू, इफ हुएवर इज वाचिंग, अगर आप ये ट्राई करोगे, आपको कोई इंसान नहीं पसंद है, आपको लगता है वो आपको पसंद नहीं करता, आप उसे हर बार जब मिलो ना 5 बार एक जेन्युइन स्माइल दे दो। आई एम गारंटीइंग यू, छठी बार वो इंसान विल लाइक यू एंड यू विल लाइक देम बैक। सो इट वर्क्स। Thank you, Ira. This is so amazing. I did not even realize कि मेरा अक्सर हमेशा smiling face रहता है, and that is one of the reason I have so many friends, Yes, maybe. yes, yes. So yeah, and that's a very good tip Ira has just shared with us, and that's what even makes her more unique. So you look at Ira, when I've seen her in the events, Ira, अगर मैं mention कर पाऊँ तो we were in a events where we first met शीरा के event में, वहाँ पर बहुत सारी सुपर मॉडल्स आ रखी थी, बहुत सारी मिस इंडिया आ रखी थी, काफी सालों की जो मिस इंडिया रही है, और काफी खूबसूरत लंबी ऊंची कद वाली लड़कियां आ रही थी। वहीं पर ईरा आती है और शी जस्ट स्टील्स द शो। So she just steals the show. Trust me. So the moment Ira just start addressing the audience, and there is like pin drop silent among all the butterflies. So there is like pin drop silent, and everybody is just waiting what next is going to come from her mouth, because every word she's speaking is actually bringing a lot of knowledge, a lot of awareness, a lot of self-reflection for our own thoughts. So this is what Ira wins over. Okay, so I have seen her personally on the stages, and I've seen the first only interaction. It just takes like one particular interaction where she stole the show, and I was so mesmerized by her, geniusness. I was so mesmerized by her humbleness, and that's why she's there on the show today. And I would like to really bring such inspiring people always, only on this show, so that you can really learn some life lessons which they are doing, which are making them extraordinary in their own way. Thank you, Ira. I always like lack short of appreciation for you. Trust me. I'm still feeling I'm not doing justice. नहीं, please, Okay. please stop. अच्छा मीरा, थैंक यू सो मच। विल मूव टू अनदर क्वेश्चन। हम लोग Yes. बेसिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू लाइव हुए, तो मैं व्यूअर्स के कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ, जबकि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं और शायद उसमें से कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। तो मैं लास्ट में, जब हमारा इंटरेक्शन खत्म होने वाला होगा, मैं 5 मिनट में आपको व्यूअर्स के क्वेश्चंस या कमेंट भी जरूर रीड करके बताऊंगी, because ठीक a है। lot of them are texting me personally on my other phone that please Oh, ask this okay. question. Okay, so Ira, we would like to know from you, in spite of so many achievements on your name, so many accomplishments, even like the list is like endless. I think if any human would ever have achievements like you, would be on cloud nine. You always remain so grounded, so humble. What makes you remain so grounded? What is that, like? What is that? What is that thing which you keep telling to yourself, which makes you remain this humble, this grounded, this calm? I think I see no reason why. See, I have always had a high self-esteem. मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं किसी से कम हूँ या मुझे किसी के साथ कंपटीशन करके कुछ प्रूव करना है। तो आई थिंक द ओनली पर्सन आई हैव एवर कम्पीटेड विद इज माई सेल्फ। तो अगर आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो तभी आप दूसरों को रिस्पेक्ट दे पाते हो। एंड शायद एरोगेंस तब आती है जब आप अपने आप को दूसरों से बेटर समझना चाहते हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी से बेटर हूँ। मेरे जो सर्कमस्टांसेस थे, मैं उसमें जो कर सकती थी मैंने वो किया।
and everybody has had different circumstances. बहुत लोग अपने circumstances से बहुत अच्छा कर रहे हैं. शायद मैं उनके circumstances में होती तो मैं उतना अच्छा नहीं कर पाती. तो अपने आप को किसी से कंपेयर करना या अपने आप को किसी के से बेटर समझना बहुत अनफेयर होता है, क्योंकि आपको नहीं पता उन्होंने क्या क्या डील किया है, उन्होंने क्या क्या सहा है टू रीच वेर एवर दे हैव, यू नो. सो आई सी नो रीजन, मतलब मैं इनसिक्योर नहीं हूँ अपने बारे में, शायद इसीलिए मैं किसी और के लिए भी नेगेटिव नहीं सोच सकती, बिकॉज मुझे फर्क नहीं, मैं हर किसी को रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज मैं खुद को भी रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं कभी भी कुछ इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी से बेटर करके दिखाऊं, या मुझे किसी और से अप्रिसिएशन चाहिए, या किसी और के लिए आई एम competing with someone else. ऐसा कुछ है नहीं. I am doing things which I feel is right, and I don't see other people as lesser, or मैंने कभी भी नहीं सोचा कोई मेरे से बेटर है, तो आज भी मैं ये नहीं मानूंगी कि कोई मेरे से कमजोर है. प्रॉब्लम क्या है, अगर आप कभी इंफीरियर फील करते हो तभी आप सुपीरियर भी फील करना चाहोगे. तो जब मैं इंफीरियर नहीं फील करती हूँ तो मैं सुपीरियर भी क्यों फील करूंगी? I think it comes from that. So I am very secure in my own identity, and that's a problem actually. Most people are not secure in their own identity of themselves. तो मुझे अपनी आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं अपने में जो कमियां हैं वो अपनी वजह से देखती हूँ, इसलिए नहीं कि किसी और से कंपैरिजन में. मैं ये नहीं देखती कि मेरी हाइट छोटी है, वो दुनिया की प्रॉब्लम है अगर उन्हें ऐसा लगता है, मेरी नहीं है. मेरे लिए डज दैट अफेक्ट माई एक्शंस, वहां पे बात आती है. तो आपको जो मिला है, आपने उसके साथ क्या किया, इज व्हाट डिफाइंस यू एज अ पर्सन. एंड ये मैं किसी और के लिए कैसे जज करूं? मुझे नहीं पता किसको क्या मिला है, राइट? तो किसी और से अपने आप को बेटर समझना या किसी और से अपने आप को वर्स समझना, आई डोंट सी अ रीजन टू दैट. थैंक यू ईरा. तो सुना व्यूअर्स आपने हमारी ईरा की बहुत ही सिंपल सी लर्निंग. तो जब भी आपको कंपेयर करना है खुद के वर्जन एक्स से और खुद के वर्जन करेंट, so you have no competition actually in reality. The only competition you have is the one you see in the mirror. So stand and see if you're better than yesterday's, or if you're better than yesteryear. Exactly. Yes. Thank you, Leah. That's actually a very beautiful thought. And in fact, many people who actually, concentrate on their own self, they only turn out to be better because energy grows where energy goes. So if you are continuously focusing on others' credibilities and others' capacities, then you are always losing your own focus. So it's very important to know. हाँ, नहीं, बहुत जरूरी है कि आप अपनी खूबियां पहचानिए, और तभी आप दूसरों की भी खूबियों पे उन्हें क्रेडिट दे सकते हैं. जब आप अपनी खूबियां नहीं पहचानते हो, अपनी आइडेंटिटी में आपको प्रॉब्लम है, तभी आप किसी और की आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज करने में हेजिटेट करोगे, आपको बुरा लगेगा. तो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग कि खुद के बारे में पॉजिटिव सोचो, तभी दूसरों के लिए भी सोच सकते हो. सो या, थैंक यू सो मच ईरा, दैट वाज वंडरफुली आंसर्ड. और आपकी इस बात से आज मुझे बहुत बड़ी सीख भी मिली है. एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू, मैंने आपको मेंशन किया था, मैं यूनिवर्सिटीज में लेक्चर करते हुए हमेशा आपकी कहानी को जरूर अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ. योर इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी. एंड आज मुझे ईरा की एक नगेट ऑफ विजडम मिला है जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इन प्रैक्टिकल लाइफ आल्सो आई एम गोइंग टू शेयर. एंड यू कैन ऑलवेज सी व्हाट यू कैन ब्रिंग व्हेन यू एक्चुअली फोकस ऑन योर ओन सेल्फ रिफ्लेक्शन. तो जितने भी हमारे अब तक महान लीडर हुए हैं, जितने भी इंस्पायरिंग लोग हुए हैं, शायद उन सबका माइंडसेट ईरा से बिल्कुल मैच करता है. तभी आप देख सकते हैं वो अपनी स्किन में कितनी कंफर्टेबल है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने एम्पावरिंग है और कितने चेंज ड्रिवन है. So thank you so much, Ira. You are such an inspiring soul all the time. I really feel it's like it's such a pleasure to have someone like you, someone like you, a friend, a buddy, and to know someone who has so much deep lessons to teach every day. Thank you so much for being this wonderful. Okay, Ira, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, बट कई बार स्टूडेंट्स में इस तरह का कंफ्यूजन रहता है कि हम कौन से सब्जेक्ट्स चूज करें. क्या हम अगर सिर्फ साइंस में अच्छे हैं तो तभी हम IAS में अच्छा बना पाएंगे, या हम अगर मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, या हम अगर एडमिनिस्ट्रेटिव या हिस्ट्रीज में अच्छे हैं तभी हम IAS के प्रोफेशन चूज कर पाएंगे. तो ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है मुझे. तो व्हाट आर द स्ट्रीम दे नीड टू पिक अप व्हेन दे आर थिंकिंग टू प्लान फॉर दिस एग्जाम, और किस तरह की प्रिपरेशन करना जरूरी है उन्हें from the 10th level when they want to do something like this. Oh God, can I please say this? Why? इतनी लाइफ में क्या टेंशन है भाई?
अभी आप सिर्फ 10th में हो और आप एक ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हो जो आपको ग्रेजुएशन की बात करनी है. There are so many steps left. Please do not do this. I really request our parents, please बच्चों की जिंदगी ऐसे मत बर्बाद करिए. तभी हमारे देश में we do not have entrepreneurs, we do not have children who have really achieved anything, and we are a country of people who are very very depressed. हमारे देश में the happiness level of people is very low simply because हम ये करते हैं बच्चों के साथ. हम क्लास 10th में ही उन्हें एक इतने लंबे प्लान के बारे में अभी से कहते हैं, अभी से करना शुरू कर दो. Let the child have a, grow up, live, see the world, कुछ सीख लो, कुछ कर लो. एक चीज मैं बताना जरूर चाहूंगी, मेरी जो जॉब है वो इंटेलिजेंस की नहीं है, वो एक्सपीरियंस की है, वो विजडम की है. EQ और IQ दो डिफरेंट चीजें होती हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे एग्जाम को पास करने के लिए आपको IQ चाहिए, पर रेयरली इस जॉब को करने के लिए आपको EQ चाहिए. एंड इट्स यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग इन 10th. 10th में सिर्फ ये कहूंगी, बेटा जितनी हॉबीज हो सकती हैं उतनी हॉबीज रखो, जितने दोस्त हो सकते हैं उतने दोस्त बनाओ, सबसे बात करो, सब कुछ एक्सप्लोर करो, सब सीखो, बिकॉज you will need your experiences to help you when you grow up. So gain as much as you can, participate in everything. Don't worry about studies so much. Yes, you need to have something. So step 1 is getting into a professional graduation course. I always recommend this. Please get into a professional graduation course because UPSC is a very unsure thing. इसमें हर तरीके के बैकग्राउंड के लोग अलाउड हैं. सिर्फ आपको एक बेसिक ग्रेजुएशन की डिग्री from a recognized by government college चाहिए. तो आप इंजीनियर भी हो सकते हो, आप लॉयर भी हो सकते हो, आप डॉक्टर भी हो सकते हो, आप BA भी हो सकते हो, आप बैचलर इन फैशन डिजाइन भी हो सकते हो, आप आर्किटेक्ट भी हो सकते हो, आप इंटीरियर डिजाइनर भी हो सकते हो, आप कंप्यूटर BCA भी हो सकते हो, BBA भी हो सकते हो, MBA भी हो सकते हो. तो कुछ भी आप कर सकते हो. ग्रेजुएशन डज नॉट मैटर, बट पहला स्टेप इज टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू. अगर UPSC नहीं क्लियर होता है, मैं बहुत ये थोड़ा डिस्करेजिंग होगा बच्चों के लिए, बट ये एक रियलिटी चेक है. एंड लाइफ में हमेशा प्लान्स एक रियलिटी, रियल पर्सपेक्टिव से ही बनाने चाहिए, फैंटेसी से नहीं बनाने चाहिए. UPSC के लिए हर साल 10 लाख लोग प्रिपेयर करते हैं, जिनमें से मैक्सिमम 1000 का सिलेक्शन होता है. और इन 1000 में से देयर इज 150 के आसपास हैं जो IAS बनते हैं. और एक मैं फैक्ट बताती हूँ, क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट्स अलाउड हैं, तो जो वो 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे थे, उनमें से 4000 के आसपास ऐसे होते हैं जो पहले किसी और सर्विस में ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं इस एग्जाम में. और जो फाइनल लिस्ट में 1000 आएंगे, वो उनमें से 700 कम से कम यही वो लोग होंगे. तो रेयरली एवरी ईयर 9,96,000 में से सिर्फ 300 लोग सिलेक्ट होते हैं. तो ये बहुत बहुत बुरे ऑड्स हैं. अगर आपको प्रोबेबिलिटी जरा भी आती है तो आपको समझ आएगा कि ये कितना खराब प्रोबेबिलिटी है. और इस वजह से बहुत जरूरी है कि आप लाइफ के प्रैक्टिकल होके प्लान बनाएं कि अगर UPSC नहीं होता है तो आप क्या करेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ऐसी चीज ड्रीम करी, पूरी लाइफ आप उस पर लगे रहे और वो नहीं हुआ, और उसके बाद आप 32 ईयर्स की एज में आके अब सोचने लगे कि अब मैं लाइफ में करूं क्या. ये एंड एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर आप किसी भी चीज में उससे पहले सक्सेसफुल नहीं हुए हैं और ये आपने प्लान किया और आप इसमें भी सक्सेसफुल नहीं हुए, तो अपने आप को उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. इट इज वेरी टफ टू पिक योर सेल्फ अप आफ्टर फेलिंग एट समथिंग दैट यू हैड प्लान फॉर सो लॉन्ग एंड देन गो ऑन टू अ डिफरेंट पाथ. तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना छोटी छोटी सक्सेसेस पहले पा लो. अगर आप इंजीनियरिंग में आ गए किसी अच्छे कॉलेज में, तो आपकी वो एक अच्छी छोटी सक्सेस है. एटलीस्ट अगर आप IAS नहीं बन पाए तो आप इंजीनियर तो हो, आपसे वो तो कोई नहीं छीन पाएगा, आप उसका जॉब तो कर सकते हो. सो माय रिकमेंडेशन इज प्लीज डू नॉट थिंक ऑफ IAS. यू डोंट नीड एनीथिंग. हर तरीके की डिग्री, हर तरीके के बैकग्राउंड के लोग सिलेक्ट होते हैं. यू ओनली शुड फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू फॉर ग्रेजुएशन. एंड इन केस UPSC डज नॉट वर्क आउट, तब आप क्या करोगे. अभी से 10th में प्लीज इतना परेशान मत हो. Thank you so much, Ira. So you understood. बहुत बार हम होप छोड़ देते हैं जब प्लान A फेल होता है. So when you have a plan A getting fail, or chances or probabilities are that it may fail, so you should have a plan B.
So always prepare, do small achievements, and then plan Yes. ahead. It has to Okay, be so step that by you have step. something to earn livelihood, and Yeah. exactly something to very practical advice, Ira, very practical in fact. बहुत बार हम लोगों ने देखा है हमारे यहाँ आपने सही मेंशन किया हैप्पीनेस लेवल बहुत कम है Yes. हमारा that's the reason we have in school launched now happiness Yeah. curriculum program Yeah. in government schools of Delhi by Dalai Lama. I'm also one of the happiness coach there. Okay. And I know how much important it is Yes. to bring happiness to our people, Yes. right? Because in life, all you need to be is just happy in your skin, whatever you do, Yes. Yes. eventually, right? Yes. So life is so big. अच्छा ईरा आप हमें बताइए what are the habits जो आप you can swear by जो आप में भी है which one need to install in himself which makes him a better person and a better human being. What are those habits? Okay. First is stop comparing yourself with the world. और किसी से झूठ भले ही बोल दो, अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए. You should be brutally honest with yourself. अपने मोटिव्स को, अपने एक्शंस को जज करना सीखो. अगर आपने किसी से गलत कुछ बोला है तो एडमिट करो और पूछो अपने आप से मैंने ऐसा क्यों बोला. बिकॉज अगर हैप्पी रहना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑनेस्ट भी रहो. एटलीस्ट दुनिया से मत बोलो, चाहे औरों को मत बताओ, बट अपने आप से तो कम से कम झूठ मत बोलो. फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी चीज बोलती हूँ. अभी हम यूपीएससी की बात कर रहे थे. आप अपने आप को अगर बोल रहे हो मैंने सारा पढ़ लिया या मैंने बहुत सारा पढ़ लिया, तो आप किसका फायदा कर रहे हो? वो झूठ अपने आप से बोल के कि मैंने सारी किताब अच्छे से याद कर ली, आप किसका फायदा कर रहे हो? रिजल्ट में तो दिख जाएगा ना, राइट? एंड आप कुछ भी करते हो, वो झूठ आपको खुद को नुकसान करता है. आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोलोगे, किसी दिन आपका वो जरूर वापस आएगा. तो अगर मैं ये नहीं कह रही सब जगह सच बोल बोल के बी रूड टू पीपल, देयर इज दैट बाउंड्री ऑल्सो, राइट? बट अपने आप से झूठ नहीं बोलो. उसके अलावा प्लीज एक्सप्लोर लाइफ. बी ब्रॉड इन योर थिंकिंग, बी ब्रॉड इन योर अप्रोच, बी ब्रॉड इन योर आइडियाज. सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं अपनी सोच में. एंड ये जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हर कोई ये सोचता है मेरे को नौकरी मिल जाए. कितने कम लोग हैं जो सोचते हैं मैं किसी को नौकरी दे दूं. अगर सब नौकरी मांगते रहेंगे तो नौकरी देगा कौन? आएगी कहाँ से? तो हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वी एज अ कंट्री आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड अपनी सोच में. हम ना कुछ बड़ा नहीं सोच पाते, हम छोटा छोटा ही सोचते रहते हैं, छोटा छोटा ही करते रहते हैं. तो आई वुड दैट्स वन थिंग आई वुड से कि थोड़ा सा बड़ा सोचना सीखो, थोड़ा सा लार्जर पिक्चर देखना सीखो. एंड अगर किसी चीज से डरते हो तो ये जरूर सोचो कि क्यों डरता हूं मैं. आस्क योरसेल्फ व्हाई. एंड किसी और के साथ आई रियली बिलीव दिस, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू. किसी के साथ वही करो जो आप अपने साथ चाहते हो. कि कोई आपके साथ अगर ऐसा बिहेव करे तो आपको कैसा लगेगा. हमेशा कुछ करते हुए ये सोचो कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ मेरे साथ अगर होगा तो मुझे कैसा लगेगा. आई थिंक वी लिव इन अ वंडरफुल वर्ल्ड इफ वी कैन ऑल जस्ट मॉनिटर आवर ओन एक्शंस. कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. एंड डोंट लेट अदर पीपल डिफाइन यू. डोंट लेट अदर पीपल टेल यू कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आपकी क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, आप को कैसे सोचना है, आपको अपना जीवन कैसे जीना है. पड़ोसी को देख के अपने लाइफ के प्लान्स मत बनाओ. पड़ोसी is not the same person as you. They don't have the same talent as you, same interest as you, same background as you, same lifestyle as you. So how can your dreams be the same as theirs? तो आप उनके टैलेंट पे अगर प्लान बनाओगे तो फेल हो जाओगे. या फिर आप अगर मेरे टैलेंट के हिसाब से आप अपना करियर चूज करोगे तो कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो? आप उसी में सक्सेसफुल हो सकते हो जो आप अपने टैलेंट के हिसाब से चूज करोगे. सो स्टॉप लिविंग योर लाइफ by what your neighbor is doing or what someone else is doing. Make your own plans. Nobody else knows you as well as you know yourself. Nobody else can define your life. Nobody else can tell you what is good for you. You know that. If you're honest with yourself, you'll make good plans. मतलब मैं honestly ये बोल रही हूँ, अगर आप ये सोच पा रहे हो कि मेरे में इतनी पढ़ाई करने की कैपेसिटी है या मैं इतने सारे लोगों से कंपटीशन करके एक्चुअली मैं जीत सकता हूँ, तो ही मैं यूपीएससी का एग्जाम के लिए 5 साल लगाऊं, तो आप कर लोगे. बट अगर आप ये बिना सोचे सिर्फ एक फैंटेसी में कि मुझे करना है करके करोगे तो शायद बड़ा मुश्किल होगा.
So you have to be honest with yourself. You have to judge your own performance, and you have to know yourself. Thank you, Ira. Thank you so much. Ira, now I have one liner before I move to audience questions. So one liner को पहले finish कर दे because then I will be accessing the audience questions. Yeah. So the one liner are, be someone who. You have to complete it, okay, in your own words. Okay. So I will say a few words and then you complete it. Okay. Be someone who is happy in their own skin. Life is all about. Being happy with who you are. Thank you. Okay, when you face challenge, you first think what I can do about this situation. Think how my actions can change this. And if you let go fear of failure by? You remember that failure can always happen, but if you don't try, there is no chance of success. Thank you. And to unwind yourself, because I know you are a kind of person who loves music, loves traveling, loves movie, loves going out with friends. So what is that Ira will do the three things in a priority to unwind herself? Yeah, I carry my books around. I read a lot, so I always have my books, and I have my Kindle here. Okay. So yeah, this is my unwind. And Ira, your favorite quote for life is? Live and let live. Okay. And three books you swear by and you can recommend to everyone. I don't want to recommend books to people simply because I think because of our own experiences, very different things make an impact on us. I have read more than 1,700-1,800 books. And my point is, what impacted me was because of my background, my story, the way I see myself. So I don't want to impose that on anyone else. I think we should all just read as much as you can. And, every book will teach you some little things. So I don't want to recommend books simply because of that. Thank you, Ira. Ira, so now can I pick up two questions from audience? Though I have so many questions from audience, but I'll just pick up two which are relevant and asked by many. Just a moment. Yeah. So thank you, audience, and we are very sorry. So we couldn't take your questions live as I operated from a different portal today. Okay. So Ira, the question is, what was your inner calling to choose this profession which you choose? I wanted to do something, just say my actions made someone's life better. I wanted to have a job where I made a difference to people's lives. People, there would be people who would say that because this person was here, my day was better or my life became better. So yeah, that's the only reason I did this. That's the only reason I'm here. So you can see there was a passion, there was persistence, and there was a motive, which was beyond the normal thinking. So she wanted to impact lives of people, and that's the reason she chose this profile. And she's doing a phenomenal job, trust me. She's doing something, she's a change maker, as I mentioned, and bringing a lot of changes for us. Ira, one more question, which is from the audience again. Okay, so they are saying, they are asking, now it is, we have seen there's a lot of social bullying on the internet. Yeah, Has it ever happened to you that in spite of achieving something, you ever had to come across? Yeah, of course. And how do you deal with it? Like, honestly, I don't really see if someone is mean to you, that's about them and not about you. Why should your actions define my actions? That's the way I think, that अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो मैं क्यों उसके वजह से गलत करने लग जाऊं? And what is my my character that I can be so easily influenced by your actions? So I really believe this, that my actions are basis who I am. If I can change my actions basis who you are, then there is something wrong with me. So the way I see it, I will do what I need to do. I will think of myself the way I need to. I will react to situations the way I need. My conscience says. I do not let your actions or your words affect the way I see myself or the way I will react to something. तो अगर आप गलत हैं, जरूरी नहीं है कि तो मैं उसका रिएक्शन में गलत होने लग जाऊं.
तो वो मेरी कमजोरी हो जाएगा. आप गलत हैं, वो आप तक रहेगा. So I don't let other people's negativity turn me negative. I remember this one thing, मैं ये हमेशा बोलती हूँ. You know, कुछ और याद होना हो लाइफ में. When we were passing out of business school, MBA के last day, this was 2008. I passed out an MBA of MBA in 2008, and that was the year that we had the stock market crisis, and we had the last, market crash and the world massive crisis था उस साल. तो हमारे प्रोफेसर ने हमें जो हमारे डीन थे, उन्होंने एक बात बोली बस कि when you get out of this place, the whole world will try to make you negative. The world will try to make you cynical. The world will keep giving you reasons to turn negative, to turn cynical. If they do that, if you turn that way, then the world wins. तुम्हारा कैरेक्टर कुछ नहीं है अगर तुम दूसरों को अपने एक्शंस चेंज करने दो. तो that's how I live कि अगर आपके कहने से, आपके कुछ करने से मैं बदल जाऊं तो वो मेरी कमजोरी है. So that's how I deal with it. And I think a lot of people behave in a way because they are ignorant. So I work on teaching people things. So I see it's my job to, teach you to be better. Yeah. Thank you, Ira. That was very thoughtful. In fact, we have seen it. People who are sitting 5,000 miles away behind one computer screen with random accounts just put on hate comments. And this is how you deal with it. Your hate comments doesn't define me. That's what Ira believes in. And that's how she has always been. So thank you so much, Ira. It was so wonderful having an interaction with you. We are so blessed. We had someone like you giving us the nugget of wisdom. We are so blessed that you invested your time today. And we wish you a lot of success, a lot of happiness, and we wish to have you over and over again. And I will bring this write-up story in Navdrushti Times for Ira and also on 10 News. Stay tuned. And those who have missed out this show on the live, they can always go on my page and watch this show, and also on the YouTube. The links will remain. As I mentioned, the only motive for this show is to bring inspiring people on the show so that you can really learn the practices they do and can learn the nugget of wisdom they implement in their life. And we have someone like Ira today on the show, and next week we'll have Indus Ji on the show. So stay tuned. Thank you so much, Ira. We will take leave, and lots of love, lots of blessing. Hope you had a good time interacting with me today. Yes, absolutely. Thank you so much. Thank you for